Hello, welcome to SRG Sports Channel, a channel which is dedicated to the game of cricket for people in Mumbai and around. This channel is headed by Arundhati Ghosh, former India cricketer whose passion for cricket has made her get into this to bring up this channel for the benefit of all those who love cricket. This channel focuses on every aspect of cricket and has been active for quite some time now. And today, as part of another series of discussions we have, today we'll be discussing the corporate cricket in Mumbai. As you are aware, office cricket in Mumbai has been a great feeder and has provided top class cricketers to the country over the years. And today we have the pleasure of having company of Shri Kersi Pawri, ex-Mumbai cricketer and also from Bank of Baroda, who has played cricket for last 30 years and has now become an administrator, executing a role in different forms as a selector or as a talent spotter. And we have the pleasure of having him here today. Welcome, Kersi. Thank you so much, Jaideep. Thank you to be part of this program. Thank you so much, Jaideep, for having me on your channel. And a special mention to Arundhati Ghosh. And thanks to her also for having me on this channel. And it'll be a pleasure to share whatever information I can give you. Kersi, can you tell me, you've been playing cricket, as from childhood we have seen that Times has been a great feeder, all top players were playing Times of India, so Times Cricket Shield, so how do you look at it? How do you look at Times Cricket as it was then and now? So I started my journey in Times Shield way back in 1991 when I joined the bank. Those were early days, and I think nothing much has changed. But I would like to say that it's been a great journey. And as far as office cricket is concerned, because the ultimate aim of any sports person or any cricketer is to play for his country, and this is a perfect platform for them to showcase their talent. And moreover, Time Shield, since Time Shield, a tournament like Time Shield is existing, the corporates now can definitely recruit players on sports basis, on cricket basis, and so indirectly cricketers can get their jobs and livelihood. Yeah, that's a very good point. I understand that you are handling the entire cricket in Bank of Baroda. Yes. And that is a great way of, because you rarely see now big corporates hiring people on a permanent basis. So congratulations to you for Thank you. Having players so that they can focus on cricket without worrying about a livelihood, although the money is more nowadays. So I understand that you have got big players in your team, Yes. like Gautam is there. Along with Gautam, you have Kariyappa, Yes. and then CM Gautam CM also. Gautam. So how do these players gel with others who are not so big? Because Yes. in local cricket they are quite big. Yes. So how do they? So it all boils down to loyalty to the institution, and these boys are, apart from being exceptionally talented cricketers, they're also very good human beings. And what happens is that, and we have inculcated this family kind of atmosphere in our team. And so whether you are a big name outside is immaterial, because we are all there for a common cause, and that is to play for the brand Bank of Baroda, and never play for the name behind. That's your name. So don't play for the name and number behind, play for the logo in the front. So when you do that, automatically you will gel with the younger lot, and that's great to learn for the younger lot. And you have missed a key name, Mr. Akash Anand, who's now a regular wicketkeeper batsman in the Mumbai Ranji Trophy team. He's also with us. Okay. So I've got players from the north like Chetan Bist, Rahul Dalal. Rahul Dalal is has scored 1600 runs in Ranji Trophy 3 years back, and he's got an award. He's just second to VVS Lakshman. So we've got some
very good players from all over the country who come and play for the pride of the institution. And I feel that is a great thing. And I must say now here, Jaideep, that it is not about me, it is about our management. Our management, our Bank of Baroda management has to be given accolades for trusting this and giving us the entire freedom and entire support, because without the management support, nothing can be done. You know that. Okay. And coming back to this corporate cricket, we have Times Cricket. We also have a corporate trophy. So how different is it that from Time Shield? What corporate trophy? Can you just shed a light on that? So Time Shield is basically a format of a 3-day game with a red ball, and MCA Corporate Trophy is now in its 5th edition, and it's a T20 white ball game. So, I'm happy that both these formats exist in today's scenario, because both are equally important. Both cannot do without each other. And since the purest form of the game is Test cricket, I am so happy that Time Shield, now in its 96th or 97th year, if I'm not mistaken. Okay. It's been a legacy, historic kind of a thing. And this T20 is organized by MCA, which is also a great platform for the state, for the boys, A division, B division boys to play and stake a claim in the state teams for the SMAC trophy. So it's like a supply chain. Actually, for that, I think you should give credit to Mumbai Cricket Association, headed by Ajinkya Naik. I think they are doing a lot to ensure, maintaining the traditional form of cricket as well as introducing the latest formats of cricket. Requires a lot of passion and dedication and vision. Okay, Exactly. and it is nice that Mumbai Cricket Association, which is one of the leading in the country, is showing the way for others to follow. I think they have come up with a lot of novel things also, which is not thought, and it is thanks to Mr. Ajinkya Naik and his team that we have now. If you see, spotting talent at the lowest, at the grassroots level, we call, you have people like Cricket Improvements Committee Chairman Raju Kulkarni and Dilip Venkateswar sir, and helped by Ajinkya Naik. I'm sure administrators play a great role. Kersi, now you have a plethora of stars in it, so and youngsters. So how do you manage it? Is there a coach who manages it, or you with your experience double up as a coach or a manager? Is there anyone who's a coach? You've asked me the perfect question. So when you have superstars in your team, you definitely need someone above them to control them on and off the field. And there was no better person, and we were so fortunate that we had a person within our organization, a Dronacharya awardee, the man who spotted the great Virat Kohli at a very young age, and he's his childhood coach, Mr. Rajkumar Sharma from Delhi, and he's our All India coach for Bank of Baroda, and he's the person who has guided our team to a lot of laurels and a lot of victories, including Time Shield, Bank Shield, and other so many trophies all over India. So yes, his role is immense. Acha, Kersi, is it possible to talk to him? Because since you said that he's part of your organization, is it possible that we can just have now, like we are on air now, so is it possible to talk to him right now? Can it be done? See, Jaideep, I mean, I've also been very fortunate to interact with him. In fact, when we started playing cricket, he was my first All India captain in the bank. Okay. And then we grew as friends from there, and now we become administrators and we're working together as manager and coach of our team. So, I mean, the bonding is great between two of us. And he being very humble, I don't think if I call him right now, he would refuse. Okay, so can we? I think I can make a try. I hope he's available and free. सर राजकुमार सर, वेलकम टू दिस SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल चैनल. ये चैनल है, इट इज ये अरुंधति घोष बोल के एक लेडी है, हु इज अ फॉर्मर इंडिया टेस्ट क्रिकेटर है सर.
और वो ये वही ना। बहुत दिनों से चला रही है चैनल क्रिकेट के लिए। शी इज अ वेरी क्रिकेट पैशनेट, बोलते हैं क्रिकेट के बारे में, शी इज वेरी पैशनेट। और वो चाहती है कि वो चैनल के द्वारा कोने कोने तक पहुंचे। हमारे मीन्स आप जैसे, मीन्स अभी आप जैसे बड़े बड़े नो एक्सपीरियंस लोग जो है, उनसे थोड़ी मुलाकात वगैरह, उनके आइडियाज लेके, सो दैट इट कैन बी शेयर्ड विद द कॉमन पीपल, तो उनको मदद हाँ हो। जी। सो आई वेलकम यू नहीं ऑन द नहीं, चैनल। वेरी नो, तो वेरी विथ मी, नोबल आइडिया। yeah, with me is Kersi. We will just pick your brains. थोड़ा आपसे पूछेंगे क्या, यस, you know, आपका जर्नी और ये सब। एंड व्यूअर्स, वी डेफिनेट। हैव अमित सस हमारे बीच में, द्रोणाचार्य अवार्डी राजकुमार शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, को बहुत ही छोटी उम्र में आइडेंटिफाई किया और ही कोच्ड हिम विराट कोहली के चाइल्डहुड कोच श्री राजकुमार शर्मा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सी। सर मैं शुरुआत करूंगा। सर आपकी बेसिकली आपकी कोचिंग फिलोसफी क्या होती है सर? देखिए, कोचिंग फिलोसफी डिपेंड करती है विद द डिफरेंट एजेस, यू नो। आई मीन, कभी क्या होता है, व्हेन बहुत यंग बच्चे आते हैं, सो वी मेक देम, यू नो, वी टीच देम क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम we give them a lot of fun. We want them to come to the ground, you know. They should look forward to come to the ground. उनके उनके दिल में रहे कि मुझे कल कुछ भी मिस हो जाए, मुझे खेलने जाना है। तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है इनिशियली। बट कोचिंग मेथोडोलॉजी की बात अगर आप करें, तो देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स विच वी लुक इनटू, यू नो, क्योंकि लर्निंग द बेसिक्स, लर्निंग द मेंटल एस्पेक्ट, it is basically overall everything. Making them a good human being is also a part of coaching. सर अगर ये हम अगर छोटा छोटा ब्रेक करें, तो आपने तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे दिया, बच्चा आना चाहिए खेलने के लिए। सर उसको फिर उधर से उसकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो सर? देखिए, उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी होता है कि पेरेंट्स कितने कीन हैं, आप कौन से सेंटर पर जा रहे हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इट इज ओनली अ बिजनेस, यू नो। उन्हें खुद क्रिकेट की बहुत नॉलेज नहीं हो, लेकिन वो एक बिजनेस के लिए ये स्टार्ट कर लेते हैं एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स। तो वो एक तो पेरेंट्स को अवॉइड करना होगा। फिर पेरेंट्स हैव टू मेक श्योर दैट दे सपोर्ट देयर चाइल्ड। इफ द कोच इज सेइंग कि हाँ, बच्चे में टैलेंट है और वो आगे चल के ग्रो कर सकता है इस फील्ड में, तो मतलब उसको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। और सपोर्ट में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि अभी क्या है, पेरेंट्स कई बार ज्यादा ड्रीम करने लगे हैं कि मेरा बच्चा आईपीएल कब खेलेगा, मैं उसे टीवी पर कब देखूंगा। तो वो अपने ड्रीम्स छोड़ के लेट द चाइल्ड प्ले, लेट हिम एंजॉय द गेम विच ही लाइक्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। सर जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। हम्म। लाइक मैंने जयदीप को बताया कि वी वर सो फॉर्चुनेट कि बैंक ऑफ बड़ौदा डिड नॉट हैव टू लुक आउट, बाहर देखना नहीं पड़े। आप यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सच अ बिग कोच लाइक यू, एंड वी वर सो हैप्पी कि भाई हमको एक गाइडेंस मिल गया और हमारी टीम आपके अंडर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर चुकी है। बट मैं एक बैक जाता हूँ कि विराट को आपने अंडर 12 के टाइम पे आइडेंटिफाई किया था, आपके पास वो आया था, एंड यू सॉ सम स्पार्क इन हिम, विच व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे मुंबई में भी अभी आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years अंडर 12 की टैलेंट हंट चालू हुई है। And this talent hunt has वेरी been नाइस। this talent hunt has been spearheaded, and जो brain child है behind the talent hunt has been our very own MCA president अजिंक्य नायक सर। इनफैक्ट वेरी नाइस। इनफैक्ट उनकी एक क्लब है, और वो जो क्लब है, दे होल्ड ए एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट कॉल्ड द भास्कर ठाकुर ट्रॉफी, जहां अंडर 12 के बच्चे कैन शोकेस देयर टैलेंट्स एंड देयर स्किल्स। तो वहां से जो ग्रास रूट लेवल से हम जो पिकअप करेंगे और हमारे सिस्टम में रखेंगे, तो मुंबई क्रिकेट विल गो अहेड इन द फ्यूचर। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, बट दिस इज लाइक अ सप्लाई चेन। तो आपको मैं ये पूछता हूं सर कि आपने वो 10 years के बच्चे में
क्या स्पार्क देखा था, एंड एट दैट मोमेंट इटसेल्फ डिड यू रियलाइज कि वो इतना बड़ा प्लेयर बनेगा? देखो कर्सी, पहले तो मैं अजीके नाइक जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर हिज दिस विजन एंड जो उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर एंड बिग बिग विजन आई वुड से, यस। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इस एज में बच्चों को जनरली कोई नहीं देखता है। बात करें विराट की, तो विराट केम टू मी व्हेन ही वाज 9.5 ईयर ओल्ड। 10 साल का भी नहीं था वो। और तब ये आई रिमेम्बर द डेट बिकॉज क्योंकि उसी दिन हमने अपनी एकेडमी शुरू की थी, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी के नाम से। दैट वाज 30 मई 1998। डे वन पे वी रजिस्टर्ड अबाउट 250 चिल्ड्रन। 250 बच्चे पहले दिन हमने रजिस्टर किए थे, और फिर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, डिमांड और ज्यादा थी। लेकिन उन्हीं बच्चों में विराट भी था। और साथ साथ उसके घर से विराट के साथ उसका बड़ा ब्रदर भी था, जो जिसने वहाँ एडमिशन लिया था। तो कुछ समय बाद ही, जैसे लाइक मैं जूनियर्स को नहीं देखता था उस टाइम, मैं सीनियर्स ही बच्चे देखता था। तो मेरे जूनियर कोचेस ने आके मुझे बताया कि "ओ, सर आप आइए देखिए, एक बच्चा है, आपको अच्छा लगेगा"। 2-3 बच्चे थे ये जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। तो उन्हीं में से एक विराट था। और जब मैं गया इसके पास तो लगा कि ये बच्चा अलग है। शायद भगवान ने उसे इतनी ज्यादा, वो गॉड गिफ्ट था उसको। ही वॉज इमेंसली टैलेंटेड एट दैट एज ऑल्सो। और जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं उसको थोड़ा सा देख रहा हूँ या मैं लाइक कर रहा हूँ, तो स्टार्टेड कमिंग टू मी। और रोजाना आके कि सर मुझे बड़ों में खिला दीजिए, ये बच्चे मुझे आउट ही नहीं कर पाते हैं, सर मुझे बड़ों में खिलाएं। एंड आई यूज्ड टू स्नब हिम, कि नहीं आप अपनी उसमें ही खेलेंगे, आप अपनी एज ग्रुप में ही खेलो। तो बट आई कुड मेक आउट कि उसका उसमें जो स्पार्क था गर्सी, लाइक उस एज में भी वो बाउंड्री लाइन से पैरेलल थ्रो मारता था। और उस एज के बच्चे के लिए इतनी पावर होना बैटिंग में ना, उसके शॉट्स में, वाज आई मीन अनरीजनेबल। मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतना कस के शॉट मारे। तो ही वाज अ डिफरेंट गाय, मतलब भगवान ने शायद तो उसको क्रिकेट के लिए बनाया था, एंड दैट इज व्हाई ही रीच देयर। यस, थैंक यू। और आप खुद रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो, एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो, एक्स नॉट जोन प्लेयर हो, तो आपको तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई सच टैलेंट, डेफिनेटली। आप इतने लेवल पे खुद खेल चुके हो, तो यू नो। डेफिनेटली वो एक एडवांटेज होता ही है कर्सी। और खेलने के बाद फिर मैंने एनसीए से कोचिंग का कोर्स भी किया। एंड जब आप किसी चीज में जाना चाहते हो तो आपको पूरी तरह से उसकी नॉलेज होनी चाहिए। खेलना एक अलग पार्ट होता है, कोचिंग एक अलग पार्ट है। तो आई वांटेड टू बी डबली श्योर ऑन दैट आल्सो। बट विराट के केस में यही था कि थोड़े दिन बाद ही, कोई 6 महीने बाद उसके फादर आए, बोले कि मेरे दोनों बच्चे कैसे चल रहे हैं। तो मैंने कहा, वो कोहली साहब आप चाहें तो बड़े बेटे को तो अपने साथ ले जाइए, उसे अपने काम वाम में लगाइए, छोटे को मेरे पास छोड़ दीजिए। सर अब So, एक and- सर एक एक बात पूछना चाहूंगा सर। ये जो आप जो हम्म। मीन्स ये जो क्रिकेटर्स जो यंग क्रिकेटर्स आते हैं, ठीक है, ये जब मीन्स आप आपको दुविधा होती है क्या सर? कोई कोई बच्चा आके खेलता है बहुत बढ़िया, लाइक विराट का जैसा टैलेंट सर, वो अगर बीच में ही उनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये लड़का अभी पढ़ाई करना चाहिए, तो आप सर किस तरह उनको यू आर एबल टू कन्विंस देम कि आप लोग नहीं, ये लड़के में टैलेंट है एंड ही कैन टेक इट अप एज अ करियर? ऐसे कोई मौके आए हैं क्या सर? आपने कुछ एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे मौके? बहुत सारे इंसिडेंट बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं, एंड रियली ये एक बहुत मेजर कंसर्न है पेरेंट्स का। अभी क्या है कि अभी फॉर्चुनेटली फॉर क्रिकेटर्स बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं, बहुत सारी लीग्स हो गई हैं। आईपीएल एक लुक फॉरवर्ड करते हैं। पहले सिर्फ रणजी ट्रॉफी थी हमारे टाइम में। आप अगर नहीं खेले, अगर मतलब तो आपके पास कुछ भी नहीं था। अभी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मैं कहता हूँ अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, एक साल खेल लेते हैं, तो आपको यू एंड अप, मतलब अगर आप सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, दिलीप देवधर वगैरह, तो आप 30 लाख से 40 लाख के बीच में कमा लेते हैं। तो अब पेरेंट्स उसको एज ए कैरियर भी देखने लगे हैं।
हम्म, और यहाँ पे पेरेंट्स को पहले समझाना पड़ता था। वो कहते थे कि अगर इतना कॉम्पिटिटिव है क्रिकेट, इंडिया में सिर्फ क्रिकेट खेला जाता है, और अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ कहीं तो फिर क्या करेगा आगे चल के, इसलिए हम चाहते हैं ये पढ़ ले। तो उस केस में ना, जैसे मेरे पास 20 कोचेज हैं हमारी एकेडमी में। मैं अपने कोचेस को भी ये समझाता हूँ कि अगर कोई स्पेशल टैलेंट है तो आपको उसका ख्याल रखना है कि वो छोड़े नहीं, पढ़ाई के लिए वो क्रिकेट नहीं छोड़ दे। तो मतलब भले उसके लिए उसके उनके पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ती है, कई बार उन्हें समझाना पड़ता है। दो इट इज अ बिग रिस्क फॉर द कोच ऑल्सो, कि आप पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि मतलब आप इसको कैरी ऑन कीजिएगा, इसको खेलने दीजिए क्योंकि इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन अब आप श्योर नहीं होते कि आप उसे स्टेट खिला पाओगे या वो आगे चल के खेलेगा या नहीं। तो मतलब पेरेंट्स बोलेंगे कि हमने तो आपके कहने पे खिलाया था और अब ये नहीं खेला। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क भी होता है, लेकिन फिर भी यू कैन मेक आउट एज अ क्रिकेटर। इतने साल आप जब क्रिकेट खेलते हो फिर खिलाते हो, तो आपको पता होता है कि किस बच्चे में पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडिया खेलने का। तो वो मतलब वो समझाना पड़ता है पेरेंट्स को, और कई बार कन्विंस भी करना पड़ता है कि नहीं, आप उसको ऐसे छुड़वाइए मत क्रिकेट और खेलने दीजिए। सर कमिंग, हाँ चलो, एक कमिंग बैक टू सर नाउ फ्रॉम अंडर 12 स्ट्रेट टू बैक टू बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेट क्रिकेट। आप और मैं, जैसे मैंने इनको बोला पहले कि यू वर माय फर्स्ट ऑल इंडिया कैप्टन। मुझे याद है हम सीसीआई में जब भी फर्स्ट ऑल इंडिया इंटर बैंक जीते थे तो आप कैप्टन थे हम्म। हमारे। हम्म। तो वो टाइम से 35 ईयर्स बैक से हम कॉर्पोरेट क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। एंड अब यू हैव प्लेड ऑल योर लाइफ फॉर द बैंक इन दिल्ली एंड वी हैव प्लेड इन मुंबई। ऑल इंडिया साथ में खेले हैं। बट आफ्टर माने 5 ईयर्स से जो बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी ये आपने आपके हिसाब से ही व्हेन यू स्टार्टेड वी वर इन बी डिवीजन, आपके गाइडेंस से ए डिवीजन में चले गए चैंपियन होके। तो हाउ डू यू लुक एट मुंबई कॉर्पोरेट और ऑफिस क्रिकेट बीइंग ए supply chain for Ranji Trophy? And is it organized well? Because you बिल- have seen it now बिल- very very closely. हमारी T20 टीम की टूर्नामेंट होती है, हमारी टाइम शील्ड की टूर्नामेंट होती है। तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द दिल्ली फॉर्मेट्स। बट आपको कैसा लगता है सर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट है, आई वुड से। यहाँ पे कुछ चीजें अलग हैं, जैसे क्लब को ग्राउंड के पैसे देने पड़ते हैं, वो चीजें थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है बाकी। लेकिन मैंने देखा कि जितना अच्छे से यहाँ पे एम्पायर्स टाइम से आते हैं, अच्छा ऑर्गेनाइज क्रिकेट है। एंड इट इज अ, यू राइटली सेड कि इट इज अ सप्लाई चेन फॉर मुंबई क्रिकेट। और उसी का एक नतीजा हमारे सामने है। आकाश आनंद हमारा बच्चा वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के बाद। तो वी फील हैप्पी, एंड यहीं से अच्छा टैलेंट निकल कर मुंबई के लिए आ रहा है। और वो दिख रहा है मुंबई क्रिकेट में कि मुंबई क्रिकेट इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, बिकॉज आई बिलीव कि एमसीए इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जस्ट टू टेक मीन्स अगेन मैं आपको अंडर 12 में लेके जाऊंगा सर। अंडर 12 हम्म। हमारे यहाँ सर थोड़ा सा। मीन्स हम्म। आप कह रहे थे कि एमसीए इज वेरी ऑर्गेनाइजिंग इट वेल। सर हमारे यहाँ हम्म। अंडर 12 अजिंक्य जी ने ये लास्ट 10 साल से चला रहे हैं, ये दिस विल बी 10th एडिशन सर। हम्म। सो यू नो मुझे आपसे ये एंड में पूछना है सर। सर इज आर दिल्ली मीन्स नॉर्थ में वगैरह पीपल आर दे इन ऑफ मुंबई क्रिकेट और हाउ डज इट ना अभी आजकल कैसा है? इज Much इट? appreciated. Mumbai is always appreciated for its cricket, and मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर्स को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि वो मुंबई क्रिकेट इतने अच्छे से चला रहे हैं। एंड वो उसी का नतीजा है कि जितनी बार मुंबई रणजी ट्रॉफी चैंपियंस बना है, तो दैट शोज कि यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है क्रिकेट के लिए। इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एमसीए फॉर दैट कि वो इतनी अभी जैसे इनिशिएटिव लिया कि जितने पैसे बोर्ड से मिल रहे हैं उतने पैसे एमसीए भी देगी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। तो उस तरह के इनिशिएटिव्स एक क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लेगी तो जरूर वहां पे तरक्की होगी, जो कि देखने को मिल रही है। सर थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने थैंक यू। एक्चुअली एक्चुअली मेरा तो ये फैन मोमेंट हो गया है ऑल्दो वी मे बी ऑफ अच्छा। सेम एज। बट आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा सर।
And take No, care. God thank you. bless you, sir. Sir, thank you so much, Thank sir. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you sir. for having me here. And Thank sir, you. on behalf of SRG Sports Official, I would like to once again thank you, sir. Okay. So Thanks. I Thanks. wish you Bye. well, sir, and please, I hope to see you soon. Yeah. Okay. Bye. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye. Bye.